students, let's continue question number 6. So first we read example carefully, and from this example first we write down the given things. So see example, a company provided Z security services for the taxable value of rupees 64,500. Rate of GST is 18%. Company had paid GST of rupees 1,550 for laundry services and uniform, etc. Then question is, what is the amount of ITC? And second question, that is, find the amount of central GST and state GST payable by the company. So student, what is given in this example? So when you read this example carefully, see this taxable value. So first we write the given taxable value, that is rupees 64,500. The rate of GST is that is 18%. Then think about this. What is this amount? Company had paid GST of rupees 1,550 for laundry services and uniforms, etc. What is this? ये क्या है? तो ये कंपनी ने पेड किया है, मीन्स इनपुट टैक्स है. तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग? Therefore, input tax is rupees 1,550. And you know, input tax is input tax credit. जो ITC है वो दोनों क्या होते हैं? सेम होता है. तो पहले का आंसर मिल गया. Therefore, the amount of ITC equal to rupees 1,550. Then this example is related to our problem practice set for point 2, input output. Then GST payable equal to output minus ITC. तो इसमें आपको इनपुट जो टैक्स क्रेडिट है वो मिल चुका है. जो आउटपुट है ये आउटपुट है, लेकिन इट इज नॉट इन जीएसटी के साथ नहीं है. इसलिए पहले क्या करना होगा, हमें इसका 18% जीएसटी फाइंड आउट करना होगा आउटपुट के लिए. So see the next step, output tax, that is 18% of 64,500, and this is 64,500 into 18 upon 100, 20 cancel, then 645 into 18. अब इनको मल्टीप्लाई कर लो. 645 into 18, 40, then 32 plus this 4, that is 36, and 48 plus 3, 51, and 5, 4, 6, 0, 11, 5 plus 1, 6, and then this. So this is 11,610 rupees. This is the output tax. And then you know what is GST payable. So we write here GST payable equal to output tax minus ITC. So output tax is 11,610 minus this value 1,550. That gives the GST payable. तो इसमें से माइनस कर लेते हैं. So 0, then this 11 minus 6, that is 5, 5 minus 5, 0, 1 minus 1, 0, and this 10. Means it is 10,060 rupees. And therefore, you know, the central GST and state GST both are equal and half of GST. So central GST equal to state GST equal to half of GST, means half into this 10,060. So 2 1 ja, this is 5 ja 10, 0,
3 जा and G. So it is equal to 5030 rupees. तो था ना आसान एग्जाम्पल. See question number 7. A dealer supplied walkie-talkie set of rupees 84,000 with GST to police control room. The rate of GST is 12%. Find the amount of state and central GST charged by the dealer. Also find the taxable value of the set. So student, it is related to our practice set 4.1. Here taxable value is not given. So this type of example we consider, let the taxable value of set is x rupees. जैसे कि हमने 4.1 में प्रैक्टिस सेट में किए थे कि जिसमें टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो उसे हम लोग x कंसीडर कर लेते, कुछ लोग 100 मान के भी उस एग्जांपल को सॉल्व कर लेते. तो यहाँ पे गिवन जो भी चीज है ये क्या है, टोटल वैल्यू है विथ जीएसटी. टैक्सेबल वैल्यू नहीं है तो हम लोग टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करके जीएसटी और फिर जीएसटी के हाफ क्या हो जाएंगे, स्टेट और जो सेंट्रल जीएसटी है वो. तो देखते हैं मेथड क्या होगी इसकी. So first we write the given things. Means total value with GST is rupees 84,000 and rate of GST is 12%. So here taxable value is not given, so we consider let the taxable value of asset be x rupees. Then you know rate of GST is 12%, so find the amount of GST. So GST equal to 12% of this x, means x into 12 upon 100. Then 4 3 ja and 4 2 ja 8 and 5 ja. So this is 3x upon 25. And then you know taxable value or formula for the purchase price or the amount of the value means जब लास्ट में हम लोग कस्टमर को जब हम देते हैं तो फिर उसमें क्या करते हैं हम लोग, टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी ऐड करके ये दिया है टोटल वैल्यू. तो टोटल वैल्यू यहाँ पे हमें 84,000 दिया है. तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, टोटल वैल्यू इक्वल टू दैट इज टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी. तो ये वैल्यू कितनी दी हमें, 84,000. टैक्सेबल वैल्यू x कंसीडर किया हमने और ये जीएसटी उसका है 3x अपॉन 25. अब अगर यहाँ से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेव करते हैं तो ये 25 और 25 इंटू एक्स, 25x प्लस 3x दैट इज 28x एंड देयरफॉर 84,000 इंटू, अब ये जो 28 अपॉन 25 अगर इधर ट्रांसफर करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल 25 अपॉन 28 इक्वल टू दिस x. देन 28 3 जा, अगर यहाँ से मैं कट करता हूँ 28 1 जा एंड दिस 3 जा 84 3 0 और इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो x की वैल्यू 25 3 जा 75 एंड 3 0 मीन्स कितना आ गया वो 75,000 हुआ. अब ये क्या हो गया, उसका टैक्सेबल वैल्यू है और जीएसटी के साथ में उसने कितना भरा है, 84,000 भरा है. तो इसमें जीएसटी कितना दिया, तो जीएसटी पेएबल इक्वल टू, अब इसमें क्या करना होगा हमें कि ये जो 84,000 है जीएसटी के साथ और टैक्सेबल वैल्यू सिर्फ कितनी लगी है 75,000, तो एक्स्ट्रा कितना है, या फिर आप जो फार्मूला यूज करते हैं उससे भी आ जाएगा, माइनस करके भी वही आंसर आएगा कि अगर इतने में उसने
विथ जीएसटी वो सेट खरीदा है और उसकी टैक्सेबल वैल्यू सिर्फ कितनी आई 75,000, तो एक्स्ट्रा जो है वो जीएसटी उसमें होगा, तो वो हम माइनस कर लेते हैं, तो 0 0 0 एंड दिस 14 माइनस 9, तो ये कितना आ गया 9,000 रुपीज उसका जीएसटी पेएबल आ गया। अब जीएसटी मिल गया है तो आपको अमाउंट ऑफ स्टेट, अमाउंट ऑफ सेंट्रल जीएसटी इजीली फाइंड आउट हो सकता है। स्टेट मींस जीएसटी इक्वल टू स्टेट और ये सेंट्रल जीएसटी, बोथ आर इक्वल एंड हाफ ऑफ जीएसटी मींस हाफ इनटू दिस 9,000 दैट गिव्स रुपीज 4,500। तो जो अमाउंट था वो टैक्सेबल वैल्यू मिल गया 9,000 नहीं 75,000, और जो जीएसटी का अमाउंट है वो 9,000 आया, और 9,000 के हाफ मींस जो यहाँ पे था स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी वो कितने आ गए 4,500। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस से के एग्जाम्पल के साथ में इसे एक साथ कलेक्ट करके लिखे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक टाइप के सेम टाइप के एग्जाम्पल एक साथ होंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो इस चैप्टर की आप प्रैक्टिस करते रहिए।